So here today in this video we will move ahead to the next tissue, because in the previous video we have completed the connective tissue portion. So here we are discussing today about a new tissue, the third type of tissue, that is muscular tissue. Okay, first we will talk about the general introduction of this tissue. What is muscle, what is the organization of muscle, or what are the things present inside the muscle. We will discuss all of that and then we will move into the types of muscle. Okay, so all types of movements, we are discussing about muscular tissue and what does this tissue do. All types of movements are brought about in the body with the help of muscular tissue. That means muscular tissue is responsible for giving us the various movement of our body. The movements can be voluntary or involuntary. Okay, but these movements or any kind of movement which is occurring within the body, or we are manipulating our body parts, all these movements will be done in our body with the help of muscular tissue. Okay, they are formed during embryogenesis. They means muscles are formed during muscular tissue. They are formed during embryogenesis via a process called myogenesis. So formation of the muscle, for example the formation of bone, okay, that process was called as ossification. Here the formation of muscle is called as myogenesis. Muscles are formed by mesoderm except for iris ciliary body. So iris ciliary body is a muscle, okay, which is formed by ectoderm. Except for this one muscle, all other muscles in the body are formed by whom? Are formed by mesoderm. Okay, so you will have to relate to these small things. Okay, now if you ask me, sir, what is muscle, or if you ask me, sir, how does a muscle look like? Okay, so what is the definition that I am going to provide you, or what is the internal structure of the muscle, that we need to discuss it out. So we will start from a small structure. Laterally we will move into a bigger picture, that is laterally we will move that how a muscle looks like. But first we will start with the smaller things which constitutes a muscle. For example, we will start with muscle fiber. Okay, we are going to start with muscle fiber. How a muscle fiber looks like. Muscle fiber is considered to be the smallest unit of the muscle. Okay, the smallest entity, smallest unit of the muscle. So first we will look how a muscle fiber looks like. A muscle fiber looks something like this. Okay, if we are looking at a muscle fiber from a transverse sectional point of view, फ्रॉम ट्रांसवर्स सेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग एक मसल फाइबर को देख रहे हैं तो एक मसल फाइबर हम लोग को ऐसा दिखाई देगा. इस मसल फाइबर में ये जो कवरिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. इनसाइड दिस कवरिंग इज प्रेजेंट अ साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड एज sarcoplasm. So sarcoplasm is the cytoplasm which is present inside the sarcolemma, and in this sarcoplasm, which is the cytoplasm, in this sarcoplasm we will see that in this sarcoplasm there are present some myofibrils. Okay, some myofibrils are present and they are oriented in their own arrangement. In this way we are going to see that randomly there are many such myofibrils present. Okay, one I have given in red, another one I will make in blue. So blue and red का mixture, ठीक है, इस तरीके का बहुत सारा छोटा छोटा प्रोटीन फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट सस्पेंडेड. ओके, सस्पेंडेड इनसाइड द सार्कोलेमा, सस्पेंडेड इन द सार्कोप्लाज्म. सो ये जो मैंने ब्लू में मैंने ड्रॉ किया है, लेट्स कंसीडर दिस वन एज एक्टिन. ओके, एंड जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है दैट is called as myosin. Okay, and this actin and myosin are considered as what? These are considered as the myofibrils, and these myofibrils are considered to be the structural and functional unit of muscles. Why they are called a structural and functional unit of muscle? Because
This myofibril, actin and myosin, they are responsible for bringing the phenomenon of contraction and relaxation. We know that how come or how do these muscles bring some movement in our body, how we are able to move, how this muscle is able to manipulate some of our body part. How is this muscle capable of doing that? This muscle is capable of doing that because this muscle does contraction and relaxation. It contracts, it again comes back to its original position. So contraction and relaxation, whenever a muscle will do, this contraction and relaxation generally gives result in the form of a movement. Okay, and who in the muscle is doing this contraction and relaxation? This contraction and relaxation is basically done by actin and myosin. There occurs some self interaction between the actin and myosin. Okay, there is a interaction mechanism which we will study in the locomotion and movement chapter of human physiology. But for now, you remember this, that this actin and myosin, they have some self interaction. Actin will interact with myosin, myosin will interact with actin, and they have their own chemistry, and due to their own interaction, they bring that contraction and relaxation which the muscle does. So because the muscle is able to do the contraction and relaxation due to the interaction of actin and myosin, hence actin and myosins are called as the structural and functional unit of muscles. Okay, because they are responsible for bringing the function which generally a muscle do. Okay, so this structure that I have drawn, this is a muscle fiber. Okay, a muscle fiber looks like this. Now if you ask me, sir, what is muscle bundle? What is muscle bundle? Okay, so if you ask me what is muscle bundle, then muscle bundle will also be a structure which will appear like this in a transverse section. Okay, TS मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, transverse section. Okay, now what is muscle bundle? Muscle bundle is something which is made up of several muscle fiber. Okay, so this muscle fiber that I have drawn, such muscle fiber will be present inside this muscle bundle. ठीक है, numerous of such structures will be found inside a muscle bundle. And what are these structures that I have drawn? These are nothing but these are our muscle fiber. This is all muscle fiber जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वही है ये. So several muscle fiber एक साथ कोलाबोरेट करता है या एक साथ अरेंज हो जाता है in order to give rise to a bigger structure which is called as muscle bundle. Okay, so in this muscle bundle we can see that these muscle fibers, they are present in a cavity kind of structure, in a space. Now what is this space called as, where these muscle fibers are present? This space is called as endomysium. Okay, and what is this endomysium? This endomysium is nothing but a loose connective टिश्यू. ध्यान से सुनो और देखो मैंने क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या था? लूज कनेक्टिव टिश्यू का काम था कि जहां पे भी बॉडी के अंदर कहीं पे भी स्पेस मिलेगा, उस स्पेस को फिलअप करने का काम किसका था? लूज कनेक्टिव टिश्यू का था. यहाँ पे जब मसल फाइबर इस तरीके से अरेंज होगा इन ऑर्डर टू गिव राइज टू अ मसल बंडल, तो बीच बीच में इनका स्पेस है कि नहीं? ये जो बीच बीच का जो स्पेस है इसको तो फिलअप करना पड़ेगा. तो इसको फिलअप करने के लिए कौन आएगा? एरियोलर आएगा. कौन आएगा? एडिपोस आएगा. तो एरियोलर एडिपोस, दे आर व्हाट? लूज कनेक्टिव टिश्यू. वो लोग आके ये वाला जगह को फिलअप कर देगा. इस जगह को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस जगह को हम लोग बुलाते हैं एंडोमाइसियम. ठीक है, इसको हम लोग बुलाते हैं एंडोमाइसियम. और ये जो कवरिंग जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो कवरिंग है जो इस एंडोमाइसियम को सराउंड कर रहा है और एंडोमाइसियम के अंदर जो मसल फाइबर है उसको सराउंड कर रहा है, ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस कवरिंग को हम लोग बुलाते हैं पेरीमाइसियम. ओके, ये है पेरीमाइसियम. एंड इफ यू आस्क मी सर व्हाट इज पेरीमाइसियम? पेरीमाइसियम एक कवर है, तो पेरीमाइसियम होगा क्या? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो देखो कनेक्टिव टिश्यू का कनेक्शन मसल के साथ, ठीक है ना. तो यहाँ पे मसल फाइबर्स, ये मसल फाइबर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. दिस इज अ मसल फाइबर. ओके, तुम लोगों का कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे करके अलग कर देता हूँ. ठीक है, तो ये पार्ट में जो भी डिस्कस किया वो मसल फाइबर है. इस तरीके का मसल फाइबर ऐसे करके अरेंज होता है, ठीक है, और इन मसल फाइबर का बीच का स्पेस में लूज कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और भर्ती कर देता है. उसको हम लोग एंडोमाइसियम बुलाते हैं. एंड ये एंडोमाइसियम जिसमें ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट है उसको सराउंड करता है कौन? पेरीमाइसियम.
ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ मसल बंडल। नाउ वी विल मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। एक मसल कैसे दिखता है, तो देखो मैंने क्या बोला था, छोटा यूनिट से, छोटा चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग बड़ा की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज मसल की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा मसल फाइबर क्या है, फिर हम लोगों ने देखा मसल फाइबर कैसे मिलके मसल बंडल बना रहा है। अब हम लोग देखेंगे मसल बंडल कैसे मिलके एक मसल बनाता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वाला पोर्शन तुम लोग का समझ में आया है। डायग्राम प्रिसाइजली करना, ठीक है, थोड़ा हौच-पौच हो गया है मेरा, लेकिन यू गाइस मेक अ वेरी प्रिसाइज एंड वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम अबाउट व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड जस्ट नाउ। ओके, सो मेक अ डायग्राम। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मसल का डायग्राम बनाया, फिगर मसल। ठीक है, तो मसल कैसे बनता है, जैसे कि मैंने बोला, ग्रुप ऑफ मसल बंडल विल कम टुगेदर नाउ। ठीक है, एक मसल बंडल कैसे बनता है वो हम लोगों ने देखा। नाउ वी विल सी दैट अ ग्रुप ऑफ मसल बंडल विल कम टुगेदर टू गिव राइज टू अ मसल। सो यू कैन सी दीज आर मसल बंडल, एमबी करके मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, इन मसल बंडल के अंदर हमको पता है इस तरीके से एमएफ मसल फाइबर ऐसे प्रेजेंट है। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा ये सब मसल फाइबर है, एमएफ है ना। तो ये जो मसल बंडल है, ग्रुप ऑफ मसल बंडल ऐसे अरेंज होगा और उस अरेंजमेंट से एक मसल बनेगा। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मसल बंडल है वो मसल बंडल के बीच में भी कुछ कुछ खाली जगह, खाली स्पेसेस रह रहा है। उस स्पेसेस को फिर से भर्ती करने कौन आएगा, एलसीटी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या बुलाएंगे, फेसिकुली, FASCICULI। ठीक है, फेसिकुली इज द नेम ऑफ दिस रीजन जहां पे ये मसल बंडल प्रेजेंट है। और ये जो फेसिकुली है उसको सराउंड किया है एक और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ने, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इपीमाइसियम। वो तो मैंने पढ़ाया है, मसल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्या नाम है, इपीमाइसियम। सो दिस इज योर मसल। ओके, नाउ एक क्वेश्चन तुम लोग को एंट्रेंसेस में पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि हमारे बॉडी में एक जगह पे एक सिंगल मसल का प्रेजेंस होना ये काफी रेयर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है कि बॉडी के किसी एक जगह पे एक मसल नहीं है, क्या एक ही सिंगल मसल उस जगह पे नहीं है, क्या है, ऐसा जगह है। कान के अंदर है, स्टेपेडियस मसल है, अच्छा जो भी हो तो है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ मसल, एक साथ बहुत सारा मसल आ जाता है और आके एक बड़ा मसल का क्रिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा हाथ का ये वाला जो मसल है, इस मसल को हम लोग क्या बुलाते हैं, बाइसेप। नीचे का क्या बुलाते हैं, ट्राइसेप। तो ये जो बाइसेप हमारा मसल है, क्या ये एक मसल है, सिंगल मसल है, नहीं। यहाँ पे ग्रुप ऑफ मसल एक साथ मिलके एक मसल सिस्टम का फॉर्मेशन किया है और वो मसल सिस्टम इज अ, ठीक है, जिसको हम लोग बाइसेप बोलते हैं। तो एक बॉडी के कोई भी एक जगह में एक सिंगल मसल्स का प्रेजेंस कम रहता है। अगर बॉडी के किसी भी एक जगह में एक सिस्टम का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना, जिस सिस्टम के वजह से कोई मूवमेंट आएगा, तो वहां पे कोई एक मसल वो काम कर पाए, ऐसा हमारे बॉडी में बहुत कम जगह है। ग्रुप ऑफ मसल एक साथ रहता है, जैसे कि हमारा पैर, थाई रीजन में ग्रुप ऑफ मसल एक साथ प्रेजेंट है, जो हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारा लेग का मूवमेंट देने में करने में हम लोगों को मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ muscles is covered by another dense irregular connective tissue called fascia। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए कि बॉडी का ऐसा कोई रीजन है क्या जहां पे बहुत सारा मसल एक साथ प्रेजेंट है और उन मसल्स को उस जगह पे एक साथ कलेक्टिव वे में, एक अरेंज्ड वे में रखने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है फेशिया। ठीक है, तो आई होप मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक मसल कैसे दिखता है, क्या चीजों से बनता है, ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मसल में मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मसल के बारे में बात कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, नाउ वी विल मूव इनटू द टाइप्स ऑफ मसल। सो टाइप्स ऑफ मसल वी आर डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, हर ये यहाँ पे हम लोगों को कितना टाइप्स ऑफ मसल मिलेगा, 3। एक है स्केलेटल, एक है स्मूथ, एक है कार्डियक। ठीक है, ये 3 मसल है। इन 3 मसल का लोकेशन क्या है, बॉडी में अलग अलग जगह में लोकेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। स्ट्रक्चर सब देखने में अलग अलग होगा, ये मसल अलग होगा देखने में, ये अलग होगा, ये अलग होगा। ठीक है, फंक्शन सबका अलग अलग होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दिस 3 फैक्टर्स हम लोगों ने ये 3 टाइपिफिकेशन निकाला है, जिसमें से स्केलेटल मसल जो है वो हमारे बॉडी का सबसे एबंडेंट मसल है एंड हमारे बॉडी का जो टोटल वेट है उसका 40% कंट्रीब्यूशन
इस पर्टिकुलर मसल का है, इसका 5% है, उसका 2 to 3% है, ठीक है। तो ये है ओवरव्यू ऑफ द मस्कुलर टिश्यू जो हम लोग को पढ़ना है, एक एक करके इन मसल्स को पढ़ना है, इनका लोकेशन समझना है, स्ट्रक्चर समझना है और फंक्शन ये लोग क्या करता है उस पर भी हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्केलेटल मसल, ग्रेजुअली वी विल मूव टू द अदर टू, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया है कौन से मसल का, स्केलेटल मसल का पहला, ठीक है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग 2 मसल आई विल पुट इन द नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2। तो स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, ऑल्टरनेट नाम है स्ट्राइडेड एंड स्ट्राइप्ड मसल, ठीक है। क्यों ये ऑल्टरनेट नाम हम लोगों ने दिया है ये अभी आगे का डिस्कशन में समझ में आएगा। अभी यू वांट अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड विद सच ऑल्टरनेट नेम्स, बट आगे हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं उसमें ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कैरेक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दे दिया है। दिस मसल, स्केलेटल मसल इज द ओनली वॉलंटरी मसल ऑफ आवर बॉडी, माने स्मूथ एंड कार्डियक मसल जो है वो स्मूथ और कार्डियक मसल हमारे बॉडी का वॉलंटरी मसल नहीं है, उनके ऊपर हमारा कोई विल नहीं है, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो मसल है, दिस मसल इज कंप्लीटली अंडर आवर कंट्रोल, ओके। वी कैन मैनिपुलेट दिस मसल, वी कैन मेक दिस मसल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क दैट वी वांट इट टू डू। That means this muscle is under our will, but other 2 muscles they are not under our will, okay. Second, it is the most abundant muscle of our body. वो तो पता ही अभी 40% of the total body weight जो contribute कर रहा है obviously वो सबसे abundant होगा in comparison to other 2, एक 5%, एक 2 to 3%, तो उस हिसाब से this is the abundant. It is found attached to the bones. देखो skeletal muscle क्यों बोला गया, because this muscle is attached to the skeleton, ठीक है। हमारा जो बॉडी का एंडोस्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन में जो जो बोन्स है उन बोन्स के साथ ये मसल अटैच्ड है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल बोला गया, माने मसल विच इज अटैच्ड टू स्केलेटन, ठीक है। सो इट इज फाउंड अटैच्ड टू द बोन्स। तो एक नाम इसको स्केलेटल मसल क्यों मिला नाम, ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये स्केलेटन बोन के साथ ये मसल अटैच होता है। स्ट्राइडेड एंड स्ट्राइप्ड क्यों बोला गया वो बाद में मैं समझा रहा हूँ, या अभी आगे का डिस्कशन में समझ में आएगा। ये डिस्कशन होने से पहले जस्ट नाउ मैंने तुम लोगों को मसल फाइबर, मसल बंडल एंड मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैंने समझाया, ओके। नाउ अगर इफ आई कंसीडर वो जो मैंने तुम लोग को समझाया उसमें से अगर मैं एक मसल बंडल को ही मैं लेता हूं एंड इफ आई टेक और इफ आई कंसीडर अ मसल बंडल ऑफ अ स्केलेटल मसल, ठीक है। सो इफ आई कंसीडर अ मसल बंडल ऑफ स्केलेटल मसल, तो भूलना नहीं एक मसल बंडल क्या चीज से बनता है, मसल फाइबर्स से बनता है, ठीक है। तो अगर मैं एक मसल बंडल ऑफ स्केलेटल मसल को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो हमको पता है वो मसल बंडल जो है वो मसल बंडल कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरीमाइसियम, और इसके अंदर प्रेजेंट होगा मसल फाइबर। आज मैं इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं लेटरल व्यू में देखूं, लेटरल व्यू में अगर देखूंगा तो ये ऐसे करके ये एक कवरिंग के जैसा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा, और ये स्ट्रक्चर क्या है, पेरीमाइसियम। समझ में आ रहा है ना, हम लोग ऐसे देख रहे हैं ऐसे, तो ये हम लोग को गोल टाइप दिखाई दे रहा है। इस चीज को हम लोगों ने क्या किया, लेटरल व्यू में ले गए, तो ये पेरीमाइसियम हो गया, ठीक है ना। तो पेरीमाइसियम जो है, ठीक है, पेरीमाइसियम के अंदर होता है एंडोमाइसियम, और उस एंडोमाइसियम में सस्पेंडेड रहता है मसल फाइबर। तो अगर मैं स्केलेटल मसल का मसल फाइबर देखूं तो स्केलेटल मसल का मसल फाइबर्स ऐसे हम लोग को दिखाई देगा। ये एक मसल फाइबर, ये एक मसल फाइबर, ये एक मसल फाइबर, ये भी एक, ऐसे करके हम लोग को मसल फाइबर्स इसके अंदर में हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब जो मसल फाइबर्स हम लोग को दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये जो मसल फाइबर्स है, ठीक है, ये जो मसल फाइबर है, ठीक है, ये एक मसल फाइबर, ये एक मसल फाइबर, ये एक, ठीक है। ये जो एंडोमाइसियम है वो एंडोमाइसियम एकदम रिड्यूस्ड है, काहे को, इसलिए क्योंकि मसल फाइबर एक दूसरे के एकदम एडजेसेंट वे में प्रेजेंट है, एक दूसरे के एकदम क्लोज लेवल पे प्रेजेंट है, जिसके वजह से अंदर में खाली कैविटी है ही नहीं। तो जिसके वजह से इन लोगों का मतलब इस मसल का स्केलेटल मसल का जो मसल बंडल होगा उसका एंडोमाइसियम जो होगा वो एंडोमाइसियम क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि मसल फाइबर के बीच में स्पेस ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इस डायग्राम में अगर मसल फाइबर को ड्रॉ करूं तो मसल फाइबर्स एकदम एक दूसरे के क्लोजली प्रेजेंट है, ऐसे पूरा चिपक के ऐसे करके एक दूसरे के एकदम, यू कैन सी, एक दूसरे के एकदम क्लोजली ऐसे करके
प्रेजेंट है, जिसके वजह से जो एंडोमाइसियम है वो एंडोमाइसियम के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है ना, एंडोमाइसियम के लिए जगह ही नहीं है। इसी चीज को हम लोग अभी लेटरल व्यू में ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मसल फाइबर को जब हम लोग ऐसे लेटरल व्यू में देखते हैं, ठीक है, एंड इन मसल फाइबर्स के थ्रू जब हम लोग कुछ लाइट पास करते हैं, जैसे कि एक्सरे, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेज, ये सब जब हम लोग इसके थ्रू हम लोग लाइट पास करते हैं तो मसल का एक बेंडिंग पैटर्न आता है, ठीक है ना। बेंडिंग पैटर्न क्या चीज है? बेंडिंग पैटर्न है एक मसल फाइबर के अंदर, हमको पता है ये मसल फाइबर है और मसल फाइबर लाइंड बाय सार्कोलेमा, उसके अंदर सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में सस्पेंडेड है मायोफाइब्रिल, एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट किस तरीके से एक मसल फाइबर के अंदर हुआ है, ठीक है ना, उस ओरिएंटेशन या उस अरेंजमेंट का एक एक्सरे रिपोर्ट के जैसा निकल के आता है। हमको पता है हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, हमारे थ्रू एक्सरे जब पास होता है, ठीक है ना, तो पीछे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसमें हम लोगों का एक एक्सरे का वो आता है, एक डायग्राम आता है, फोटो आता है, जो भी बोले, एक एक्सरे फिल्म आता है, ठीक है, वो आता है। सिमिलरली अगर हम लोग स्केलेटल मसल के एक मसल फाइबर को ले ले और उसके थ्रू अगर हम लोगों ने सेम कुछ रेस को अगर हम लोगों ने उसके थ्रू पास किया, फिजिकल रेस को अगर हम लोगों ने पास किया, तो वो रेस भी क्या करता है, मसल का एक एक्सरे रिपोर्ट देता है, ऐसे तुम लोग कंसीडर करो। और वो एक्सरे रिपोर्ट को हम लोग बेंडिंग पैटर्न बुलाते हैं। वो जो बेंडिंग पैटर्न है, उस बेंडिंग पैटर्न में हम लोग को कुछ दिखाई देगा, कुछ क्या दिखाई देगा वो भी मैं समझा रहा हूं, कुछ दिखाई देगा। और वो जो चीज हम लोग को दिखाई देगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन इनसाइड अ मसल फाइबर। ये मसल फाइबर के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन कैसे अरेंज्ड है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोगों को कुछ बेंडिंग पैटर्न दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने स्केलेटल मसल बंडल के थ्रू अगर मैंने वो रेज पास किया, फिजिकल रेज अगर मैंने पास किया, तो इसका जो एक रिपोर्ट आएगा बेंडिंग पैटर्न, तो उसका बेंडिंग पैटर्न में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। देखो, इस तरीके का एक बेंड, इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ ड्राइंग, फिर तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हम लोग को दिखाई देगा इन दोनों में, और मैं नहीं कर रहा हूं, इस तरीके का कुछ दिखाई देगा। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है एक डार्क बेंड, और उसका जो एडजेसेंट एक और खाली जगह है, वो खाली जगह को हम लोग क्या बुलाते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ लाइट बेंड। तो एक डार्क बेंड, एक लाइट बेंड हम लोग को दिखाई देता है जब हम लोग इस मसल बंडल का बेंडिंग पैटर्न निकालते हैं, ठीक है। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं दैट बेंडिंग पैटर्न ऑफ a muscle bundle of skeletal muscle gives or shows क्या, alternating, ठीक है, लाइट एंड डार्क बेंड। तो ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बेंड ये हम लोग को दिखाई देता है जब हम लोग मतलब स्केलेटल मसल का मसल बंडल, ये एस के माने स्केलेटल, MUS माने मसल, ठीक है, मसल बंडल। तो स्केलेटल मसल का जब हम लोग बेंडिंग पैटर्न निकालते हैं तो हम लोग को ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बेंड, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट, ठीक है, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बेंड हम लोग को दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन दिखाई देता है ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बेंड। बिकॉज हम लोग को ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बेंड दिखाई देता है, इसलिए इस मसल का एक और नाम क्या आया, स्ट्राइप, क्योंकि ये स्ट्राइप हुआ कि नहीं, ऑल्टरनेटिंग लाइट डार्क, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ये स्ट्राइप हुआ कि नहीं। एंड स्ट्राइटेड का माने क्या है, स्ट्राइटेड का माने है प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइशंस का मतलब होता है मार्क्स, दाग, ठीक है। जब हम लोग बेंडिंग पैटर्न निकालते हैं तो बेंडिंग पैटर्न में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मसल बंडल के अंदर का जो मसल फाइबर है उसके थ्रू जब लाइट जाता है, वो लाइट एक इमेज देता है, उस इमेज में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, डार्क 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 बैंड बीच बीच में दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिस डार्क बैंड्स कैन बी कंसीडर्ड एज सम स्ट्राइशन, दिस डार्क बैंड्स कैन बी कंसीडर्ड एज सम मार्क्स ऑन दिस मसल बंडल।
और मार्क्स ऑन दिस मसल फाइबर का मार्क, ये एक मसल बंडल में हम लोग को मार्क दिखाई दे रहा है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन दिस मसल इज कॉल्ड ए स्ट्राइटेड मसल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड इट इज कॉल्ड एज स्ट्राइप्ड मसल। तो देखो सब नाम का मीनिंग हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग को ये समझना है कि ये जो लाइट एंड डार्क बैंड ऐसा ऑल्टरनेटिंग आया वो क्यों आया। एक मसल फाइबर के अंदर मैंने बोला कि एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट जो होता है, एक्टिन और मायोसिन कुछ ऑर्डर में, कुछ फैशन में अरेंज्ड है और उस अरेंजमेंट के वजह से हम लोग को ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलता है। अब वो अरेंजमेंट क्या है, एक्टिन एंड मायोसिन कैसे अरेंज्ड है, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे मिटा दूंगा। अभी एक मसल फाइबर में यहां से निकाल लूंगा, निकाल के उस मसल फाइबर पे मैं जूम करूंगा और जूम करके मैं समझूंगा कि एक मसल फाइबर के अंदर ऐसा क्या मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट हुआ है जिसके वजह से ये ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया है। अच्छे से इसका नोट बना लो। मूविंग ऑन। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसका